बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं प्रीवियस में जो हमने डिस्कशन की है कि कैसे हम मल्टीपल फ्री नोड्स के एग्जाम को डील करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इसको करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो एम ए बी फिक्स्ड डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 से आप कर रहे होंगे, तो डब्ल्यू 2 के पर फुट है, सो 2, और एल इज़ 10 फॉर ए बी स्पैन, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, तो ये आंसर बन जाएगा 16.67, और ये पॉजिटिव बनेगा, और ये अब आप समझ आ जानी चाहिए एम बी ए फिक्स, ये हो जाएगा -16.67 किप फुट है ये, किप फुट और किप फुट। और दूसरा नेक्स्ट क्या बन जाएगा, एम बी सी फिक्स्ड इक्वल टू, अगेन यही सिचुएशन होगी, लेकिन सिर्फ स्पैन डिफरेंट हो जाएगा, 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 रहेगा ये भी, तो ये इसका स्पैन है 20 फुट का, डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 66.67 किप फुट। और नेक्स्ट एम सी बी फिक्स्ड, इसका जस्ट साइन डिफरेंट हो जाएगा। यह हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि खाली साइन चेंज हो जाए, वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ऐसा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ एम सी डी फिक्स्ड, क्योंकि लोड ही नहीं लग रहा उसके ऊपर, तो इसलिए वो 0 रहेगा। सो एम सी डी फिक्स इज़ 0 एंड एम डी सी फिक्स इज़ ऑल्सो 0 बिकॉज देयर इज़ नो लोड ऑन सी डी स्पैन। सो ये फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हो गए। नेक्स्ट अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को डिस्कस करना है। अगर हम एंड्स को देखें, ए भी फिक्स्ड है और डी भी फिक्स्ड है, सो लिहाजा टिपिकल जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स की प्रोसेस है उसको हम यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एट जॉइंट वाइज स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो टू जॉइंट बी फर्स्ट। जॉइंट बी के ऊपर इफ़ यू सी वी हैव two members connected, BA and BC. So अगर पहले हम इसका सम निकालेंगे, सम ऑफ I over L's for all. So summation of I over L's is equal to, this is for joint B, is equal to I over 10 for BA, I over 10, प्लस नेक्स्ट स्पैन बी सी है उसका 3i over 20, सो 3i over 20. Next we have distribution, we have to calculate distribution factor for BA, and then we will calculate distribution factor for BC. All right, so BA के लिए क्या हो जाएगा, I over 10 divided by this sum. This sum is equal to 5 over 20i. So ये 5 over 20 I, यानी 5i over 20, 5i over 20. So this would become equal to 0.4. So ये बन जाएगा 1 minus 0.4 equal to 0.6. Then you go to joint C and again calculate summation of I over L at joint C. At joint C we have two members connected, again CB and CD, and for CB the I over L is 3I over 10, and for CD it is this is 3I over 20 and this is I over 10. This becomes 5I over 20, and then you can write distribution factors for CB and then distribution factor for CD. All right, so now this CB would be equal to 3I over 20 divided by 5I over 20. This becomes 0.6. All right, this becomes 0.6, and then for the other one it would be 1 minus 0.6 equal to 0.4. So that's it for B and C. We have calculated the distribution factors. Next we would go to
will start making the table where we will be writing these joints. So first we will write the joints A, B, C, and D. Now you need to draw some lines in order to arrange your data. Next you will be writing the distribution factors, but before that you should draw some lines, some reference lines. So now I have some reference lines over here. Now you should be writing the distribution factors. For BA and BC we have calculated them to be 0.4 and this one is 0.6. Similarly for CB and CD we have calculated this to be 0.6 and 0.4. So that's it. If you wanted to write, you can write that the distribution factor for AB would be equal to 1. There is just one member connected at A, which is AB. There's going to be just one end moment, MAB over there. So all of the unbalanced moment, if any, would be carried by 1 by this member. Similarly, you could write for D as well. All right. These are fixed supports, and there is just one. There's going to be just one end moment being a part of the equilibrium condition for those joints, MAB. Similarly, MDCs. All right. So next we're going to write the fixed end moments, and that's where the table starts. Fixed end moments. We're just going to copy them down from this data. 16.67 minus 16.67 next. All right. So may I change the color? 16.67 and then minus 16.67. Similarly, I think we have 66.67 BC, and then CB is minus 66.67, and then these two are 0. All right, so now we are ready to start the distribution. Now we need to choose which joint should be dealt with first. Maybe B, maybe C. You need to know the unbalanced moments for both of them, and the larger one will be the one we will start with. यहाँ पे unbalanced moments minus 66.67 है इनका sum, और यहाँ पे जो unbalanced moment है वो around 50 है. So ये बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से start करेंगे. So जब आप इसको start करेंगे, so then again the process is same. इसका sum बन जाएगा minus 66.67 और उसका sign change कर देंगे, 66.67 हो जाएगा, and then 66.67 multiplied by 0.6. ठीक है जी, that will become 40, और दूसरे तरफ बन जाएगा 0.4 into 66.67. या मैं आपके लिए लिख लेता हूँ ताकि आपको याद रहे. आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको समझ आ रही है तो आप बगैर लिखे भी यहाँ पे जस्ट वैल्यू लिख सकते हैं. इसी तरह आप 0.4 into 66.67 यहाँ पे कर लेंगे. ये आंसर कितना बन जाएगा? 40, और ये आंसर बन जाएगा 26.67. ठीक हो गया. अब इनको कैरी ओवर करना है इस तरफ. हाफ कितना कैरी ओवर हो जाएगा? ये 13.33 हाफ कैरी ओवर हो गया इधर, और हाफ इधर कैरी ओवर हो जाएगा. ये बन जाएगा 20. नेक्स्ट अब क्या करेंगे? नेक्स्ट हमने बी पे आना है. अब बी पे सिचुएशन ये है कि पहले यहाँ पे सिर्फ ये दो आ रहे थे, यानी दिस वाज, यू नो, व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज MBA fixed. This is what? MBC fixed. And what is this term? This is delta MBC due to theta C. Due to theta C, all right? But when you would be writing the nodal equilibrium equation for B, so nodal moment equilibrium equation for B, then naturally all
end moments are all MBCs, whether fixed or any increase in delta, any increment in MBC due to any rotation, just like rotation at C. वो सारे जो है वो इसके अंदर पार्ट होंगे, इस इक्वेशन के अंदर पार्ट बनेंगे. यानी ये जो अब आप इसके अब जो आप कैलकुलेट करेंगे अनबैलेंस्ड मोमेंट, दैट विल बी सम ऑफ, यानी मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं किस किस चीज़ को सम कर रहा हूँ. अनबैलेंस्ड मोमेंट यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ. अनबैलेंस्ड मोमेंट दैट वुड बी इक्वल टू -16.67 प्लस 66.67. ये दो तो मैंने यहाँ से उठा लिए, ठीक है, और प्लस ये 20 भी इसके अंदर आएगा. ये आंसर मेरा बनता है, लेट मी चेक, ये आंसर बन जाता है 70. ठीक है, अब इस 70 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 70 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन BA एंड BC एज पर दीज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. ठीक है जी. अब 0.4 इंटू 70, दिस विल बिकम 20. अच्छा, ये 70 अनबैलेंस मोमेंट है, इसका साइन भी चेंज होगा. पहले तो इसका साइन चेंज होगा तो -70 बनेगा. नाउ -70 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये MB डेल्टा MBA बन जाएगा. यानी दिस विल बिकम 0.4 इंटू -70 और ये बन जाएगा 0.6 इंटू -70. सो ये बन जाएगा -28 और ये बन जाएगा -42. ठीक है जी, -28 और -42. ये है असल में. अब आपको यहाँ पे जो लिखना था इस सारी स्पेस में, ये -28 और -42 ही लिखना था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाना था कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ, किस कैलकुलेशंस आपको अंदर की बतानी थी, इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा स्पेस ले ली और यहाँ पे चीज़ें लिख ली हैं कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ. सो अब उसके बाद कैरी ओवर करेंगे आप इनको. -28 का हाफ इधर जाएगा, -14, और -42 का हाफ इधर जाएगा. ठीक है, हाफ जा रहा है ये, -21. ठीक है, ये यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो. ठीक है, इसको मैं सर्कल नहीं करता ताकि आप मिक्सअप ना करें. अच्छा, अब आपने C को कर लिया था पहले, अब आपने B को भी वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है. अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? अब क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है? नहीं, अचीव नहीं हुआ, इसलिए कि अगर आप सम कर देंगे सारे मोमेंट्स को, ये जो मोमेंट्स हैं इन मोमेंट्स को अगर आप सम कर देंगे, ये सम तो ज़ीरो है. ठीक है, यही तो हमने इंश्योर किया है इससे पहले वाले स्टेप में. लेकिन अब इसके अंदर ये जो -21 आ गया है, अब इसकी वजह से अगेन C का जो इक्विलिब्रियम पहले आपने रिस्टोर कर लिया था आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस, आफ्टर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, वो दोबारा से वहाँ पे एक नेट अनबैलेंस्ड मोमेंट आ गया जो कि इस वक्त है -21 के बराबर, क्योंकि ये -21 है और ये 0 है. तो सम इसका कितना बना? -21. ये अनबैलेंस मोमेंट अब हम उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे हमने इसका जो सम था -66.67 उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था 40 और 26.67 और फिर इसी तरह से कैरी ओवर कर लिया था. तो ये अब हम इसी तरह से आगे यहाँ से प्रोसेस चलेगा. -21 + 0 मेक्स -21 और उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो बन जाएगा 21. और उस 21 को अब हम फर्दर करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट 0.6 और 0.4. ठीक है, इस तरफ आएगा 0.6 इंटू 21. ठीक है, और इधर आएगा 0.4 इंटू 21. ये आंसर बन जाएगा हामिद 12.6 और ये बन जाएगा 8.4. ठीक है जी, 8.6, 12.6 और 8.4. अब इनका हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा इसका. ठीक है, ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ये और ये. सो ये बन जाएगा 6.3 और इस तरफ आ जाएगा 4.2. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि अब आप जब B की सिचुएशन को, अब आपने क्या कर दिया है कि C पे आपने इक्विलिब्रियम दोबारा से अचीव कर लिया. आफ्टर दिस स्टेप C पे इक्विलिब्रियम आ गया आपके पास, बट अब आपके पास
अब आपके पास बी पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब आप इस स्टेप में यहाँ तक आके आपने बी पे इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया था, यानी अगर आप सम कर दें -16.67 प्लस 66.67 प्लस 20 प्लस -28 प्लस -42, ये सम अगर आप कर देंगे तो यहाँ से ज़ीरो बनेगा। यही तो हमने अचीव किया पिछले स्टेप में। लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर एक, जब हम सी पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो अब आप बी के बैलेंस ख़राब हो गए, बी का इक्विलिब्रियम जो है वो ख़राब हो गया है, उसका वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं रहा। अब वो अनबैलेंस मोमेंट उस वक्त, अब यहाँ पे कितना है, ये 6.3 और इस तरफ 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है अनबैलेंस मोमेंट 6.3 है। अब उस अनबैलेंस मोमेंट का साइन चेंज करके -6.3, उसका 40% इस तरफ, 60% उस तरफ, ठीक है जी। ये आ जाएगा 0.4 इंटू -6.3 और ये हो जाएगा 0.6 इंटू -6.3। तो ये आंसर बन जाएंगे -2.52 हो जाएगा ये, और ये आंसर दूसरा वाला आंसर बन जाएगा -3.78। ठीक हो गया जी। अगेन कैरी ओवर करेंगे, ठीक है। ये कैरी ओवर इधर हो जाएगा, इसका हाफ -1.26 और इसका कैरी ओवर हो जाएगा -1.89। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगेन आप देखेंगे कि सी का इक्विलिब्रियम यहाँ तक आपने अचीव कर लिया था, लेकिन अब उसके ऊपर कोई अनबैलेंस मोमेंट आ गया। किधर से आ गया? ये यहाँ पे जब आप कैरी ओवर कर रहे थे तो वहाँ से एक अनबैलेंस मोमेंट आ गया। यही इसको हम कहते हैं आइटरेटिव प्रोसेस। तो ये -1.89, अब अगेन इसको बैलेंस करना है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब इसको कहाँ तक बैलेंस करते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जिस अनबैलेंस मोमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है, यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू थी, इसी तरह फिर ये, तो जो अब ये वैल्यू अनबैलेंस मोमेंट हमारा ज़ीरो को अप्रोच करता हुआ जा रहा है। तो इस -1.89 को फर्दर हम करेंगे तो अब ये -1.89 और इधर ज़ीरो है तो ये सम -1.89 बन जाएगा। अब 1.89 का 0.6 और 0.4 इस बेस पे हम फर्दर डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 0.6 इंटू 1.89 और ये हो जाएगा 0.4 इंटू 1.89। तो ये आंसर हो जाएगा 1.13 और ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, ये लाइन में अब फर्दर एक्सटेंड कर दी है। ठीक है जी, लेकिन साथ में अब आपने कैरी ओवर याद रखना है। ये कैरी ओवर कर लेना है आपने हाफ हाफ, ये आप हाफ कैरी ओवर करेंगे तो 0.37 और इधर आप कैरी ओवर करेंगे तो ये बन जाएगा 0.56। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे अनबैलेंस मोमेंट आ गया। अब ये अनबैलेंस मोमेंट जो है वो आपने फर्दर करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 0 है और ये 0.56 है, तो ये सम बन जाएगा 0.56, साइन चेंज करेंगे -0.56, तो इस तरफ बन जाएगा 0.4 टाइम्स, ठीक है, 0.4 इंटू 0.56 ये बन जाएगा और इधर बनेगा 0.6 इंटू 0.56। तो यहाँ वाला आंसर हो जाएगा सॉरी यहाँ माइनस लिखना भूल गया मैं, ये माइनस और ये -0.22 हो गया और ये हो जाएगा -0.34। अच्छा, अब फर्दर हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेक्स्ट अपने करना हो, वैसे ये जब भी आप करें तो पहले आप आखिरी स्टेप आपका, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर दी तो साथ में कैरी ओवर भी करें। ठीक, हाफ इधर कैरी ओवर कर लें और हाफ इधर कैरी ओवर कर लें। अब इसको हाफ ऑफ करेंगे तो -0.17 और इस इधर करेंगे तो -0.11। ठीक है, ये वाली लाइन भी ऊपर से हम फर्दर एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन भी आ गई और ऊपर से इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अनबैलेंस मोमेंट है ये -0.17 रह गया, ये वाला सी के ऊपर। अब इसको आप करना चाहें तो अगेन 0.17 को डिवाइड करेंगे 40-60 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के हिसाब से।
लेकिन अब हम यहाँ पे स्टॉप करने जा रहे हैं। क्यों स्टॉप करने जा रहे हैं कि हमने कहीं ना कहीं स्टॉप करना है इसको। अब हम कर भी लेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सम्स के अंदर। सो लिहाजा लिहाजा अब हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं हमने। अब आप कहेंगे हम कैसे डिसाइड करेंगे कब कब हमने स्टॉप किया है। यहाँ पर हमने 0.5 के ऊपर जब वैल्यू पहुँच गई, अनबैलेंस मोमेंट जब 0.5 पे पहुँच गया, यानी 0.5 के फुट से लेस रह गया, तो फिर हमने स्टॉप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ये अनबैलेंस मोमेंट जो है वो इससे पहले 1.89 था और फिर यहाँ पे 0.56 रह गया और यहाँ पे अब 0.17 रह गया है। तो अब हम फर्दर कोई आइट्रेशन नहीं करने जा रहे, लिहाजा अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। स्टॉप कर लेंगे तो इसके बाद अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कब मैं स्टॉप करूँ। आपकी जो मतलब ओवरऑल यहाँ पे वैल्यूज़ चल रही हैं जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यूज़ को अगर आप देखें, अनबैलेंस मोमेंट ये 20 है और ये 26.67 है। आप खुद आप इसको यानी खुद समझ सकते हैं कि क्या करना चाहिए जब आप सम कर रहे होंगे। मसलन ये वैल्यू है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू भी आ गई है, ये वैल्यू भी थी और इससे ऊपर हमारे पास ये वैल्यू थी। ठीक है, एक ये वैल्यू थी इस तरफ। ठीक है, अब हम इनको सम करेंगे तो ये 16.67 प्लस -14 प्लस -1.26 प्लस -0.4। अब ये सारा मैं यहाँ पर अब हम डबल लाइंस लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमने इसका प्रोसीजर के अंदर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है ताकि आपको पता चले किस स्टेप में आपने क्या किया है। जब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, यानी मसलन मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की है तो मैंने ये लाइन लगाई हुई, तो इस तरह हम लाइन लगाया करेंगे। जैसे इसके बाद मुझे लाइन लगाना याद नहीं रहा था, लेट मी शो यू कि मैंने और कहाँ पे लाइन लगानी थी। जहाँ बैलेंस हम कर दें मोमेंट तो उसके बाद फिर हम लाइन लगाया करेंगे। ये लाइन सॉरी मुझे यहाँ नहीं लगानी चाहिए थी, ये लाइन मुझे यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे। ठीक है, ये जब -28 -42 ये वाला स्टेप मैंने कर दिया, अब मैं यहाँ पे लाइन लगा दूंगा और साथ में सॉरी ये -14 और -21 ये वाला स्टेप मैंने कर दिया। अब मैं लाइन लगा, इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ तक अब मैं इस नोड को बी को बैलेंस कर चुका था। ठीक हो गया। ठीक है, अब इसमें बीच में ये वाली लिखाई मैं इसलिए कर रहा था ताकि आपको समझ आएगा मैं कर क्या रहा हूँ। अदरवाइज़ आप जब ये नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको अच्छा टेबल बनता जाएगा। ठीक है, साफ़ सुथरा बनता जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने और कहाँ पे यहाँ पे मैंने वो स्टेप किया है तो मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी चाहिए थी कि मैंने सी पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम को अचीव कर दिया, तो मैंने अब मैं लाइन लगा लेनी चाहिए। इसी डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म करके फिर आप लाइन लगाएं। इसी तरह यहाँ पे आप लाइन लगाएं, फिर आप यहाँ पे लाइन लगाएं, फिर आप यहाँ पे लाइन लगाएं कि मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। ठीक है जी, यानी ताकि पता चलता जाए कि आप कब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और जो है वो प्रोसेस, ताकि समझ आता जाए आपको। अब यहाँ पर हम सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स। ऊपर जितनी एंट्रीज हैं उन सारों का सम। ये देखिएगा, अब ये जो सम है 16.67 -14 -1.26 और -0.4, सॉरी ये 0.4 नहीं है, ये -0.11 है, मैंने लिखा सही नहीं था। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था कि हम यहाँ पे डबल लाइंस लगाया करेंगे जब हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस सारे को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक और लाइन लगा लेंगे। अब हम इसके नीचे समेशन कर लेंगे ताकि पता चले कि हमने यहाँ पे सम कर दिया है। सो ये सम जो बनेगा दिस वुड बी 1.3 के फुट, और ये दूसरा ये वाला जो सम है ये बन जाएगा -47.4 और ये बन जाएगा 47.4। यहाँ पे हो सकता है कुछ आपको राउंडिंग ऑफ की वजह से या रेजिजुअल एरर्स की वजह से कुछ ना कुछ एरर आए, लेकिन आपने उसको अगर नियरली सेम है ये वैल्यूज़, टॉलरेटेबल डिफरेंसेस हैं तो आप उनको इग्नोर कर देना है। ठीक है, ये प्लस साइन के साथ है। और इस तरफ जो है ये
क्या बन जाएगी सिचुएशन, -35.8 और +35.8, और ये वाला जो सम है ये बन जाएगा 17.9। तो ये आपके पास फाइनल आंसर्स आ गए, ये एंड मोमेंट्स आ गए आपके पास। उसके बाद से आपने जस्ट एंड शेयर्स निकाल लेने और डिडक्शंस निकाल देने। ये प्रोसेस यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये दिस इज हाउ यू वुड बी एग्जीक्यूटिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर मल्टीपल फ्री नोड्स।